Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to discuss another important application of the Ampere's circuit law, and that is magnetic field induction due to a solid cylindrical conductor. So we are having a cylindrical conductor over here and it is solid. That means current will be flowing through the skin of the conductor as well as inside the conductor. So let us suppose the radius of the conductor is r and the total current which is flowing through it, suppose that current is I is the current flowing through the solid cylinder, and we need to find the magnetic field induction at three places, that is inside the cylinder, on the surface of cylinder and outside the cylinder. So first, if I try to find the magnetic field induction inside the conductor, I have to choose an Amperian loop over there. So suppose first you need to calculate magnetic field induction inside the cylinder. So let us suppose I need to find magnetic field induction at this point. Suppose at a distance r from the axis. So to find the magnetic field induction at this point, I am drawing an Amperian loop like this. This is Amperian loop, and I'll be using the Ampere's circuit law to find magnetic field at this point. ठीक है बेटा, सॉलिड सिलेंडर एक दिया हुआ है, हमें सिलेंडर के इनसाइड एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है. मैंने एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया और एम्पेरियन लूप की डायरेक्शन ये ले ली ताकि यहाँ पर थीटा ज़ीरो आए. इनफैक्ट हर जगह थीटा ज़ीरो आए, ये मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ. तो मैंने एम्पेरियन लूप ले लिया बेटा, ठीक है. तो अब मैं यूज़ करूँगा एम्पेयर्स सर्किट लॉ. लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये लूप जो है, इस लूप के अंदर सारी करंट होगी? नहीं, यहाँ से जो करंट जा रही है वो तो लूप में इंक्लूड नहीं हो रही है. So there will be some amount of the current which is passing through this cross section. That means current enclosed by loop will not be equal to I. ठीक, तो कुछ ना कुछ करंट तो होगी, वो ढूंढेंगे. फिलहाल मैं इसके लिए एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करूँगा. तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ACL. So integration of B dot dl, that is B dl cos theta, will be equal to mu naught times current enclosed. Now what is theta? It is 0 and cos 0 will be equal to 1. So I can write integration B dl is equal to mu naught times current enclosed. So B बेटा इस लूप के हर एक पॉइंट पे सेम होगा, बिकॉज ये लूप का हर एक पॉइंट एक्सिस से सेम दूरी पे है. सो B कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे. यहाँ पर आएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स लूप के ऐड करने पड़ेंगे. इंटीग्रेशन dl किसके बराबर आएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप. सो आई विल राइट इट इज 2 pi r and that is mu naught times current enclosed. Now the point is, how much current is enclosed by this loop? That is an interesting point. So अगर मैं आपसे बेटा ये कहूँ पूरे क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट है I, तो मैं लिख रहा हूँ now current through कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा? सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई. पाई आर स्क्वायर एरिया के थ्रू बेटा करंट कितनी है? आई. अच्छा, यूनिट एरिया के थ्रू कितनी करंट होगी? व्हाट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द यूनिट एरिया? यहाँ पे मैं बेटा लिखूंगा, ये हुआ पाई आर स्क्वायर. यूनिट एरिया के थ्रू कितनी होगी? करंट थ्रू यूनिट एरिया किसके बराबर आएगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना? इट इज करंट थ्रू द यूनिट एरिया. लेकिन मुझे कितने सारे एरिया के थ्रू करंट ढूंढनी है? ये कितना एरिया होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर. तो मैं लिखूंगा करंट थ्रू, शाबाश, करंट थ्रू कितने एरिया के थ्रू बेटा ढूंढनी है? करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. यूनिट एरिया के थ्रू इतनी करंट है, आई बाई पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर. और इतने सारे एरिया के थ्रू कितनी करंट होगी? मल्टीप्लाई होगा ये वाला एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर.
So pi will cancel out. It is equal to I by r square into r square. So इसी को बेटा हम नाम देंगे, this is enclosed current, this is current enclosed, this is current enclosed. Now putting the value of current enclosed over here, you will get the value of magnetic field induction inside the cylinder. तो बताइए क्या मैं लिखूं? शाबाश. Inside अब क्या हो जाएगा बेटा? Inside, so I will write B into 2 pi r, that is equal to mu naught times how much current is enclosed? I by r square into small r square. Simple. Now यहाँ पर कुछ कैंसलेशंस अगर आप देखेंगे तो B किसके बराबर आएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड चूंकि आपको ढूंढना है, ये किसके बराबर आएगा? सो R एक कैंसिल हो जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 pi r square into small r. This will be magnetic field inside the cylinder. Mu naught I by 2 pi r square into small r. तो पता चल रहा है कि बेटा जितना आप एक्सिस से सरफेस की ओर जाओगे, स्मॉल r का वैल्यू बढ़ेगा. If we move from the axis to the surface, the value of r increases. When r increases, magnetic field also increases, and there will be linear relation. ठीक है ना? तो अगर आप एक्सिस पे ही पॉइंट लेंगे, ऑन एक्सिस पे अगर पॉइंट लेंगे तो r का वैल्यू बेटा उसके लिए क्या आएगा? 0. अगर पॉइंट आप एक्सिस पे ही लेंगे, स्मॉल r का वैल्यू 0 आएगा. मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा? 0. तो पता चल रहा है कि एक्सिस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0. और जब आप मूव करेंगे एक्सिस से सरफेस की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज लीनियरली. ये लीनियरली इंक्रीज होगा, यानी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 होता है. फिर जितना आप सरफेस की ओर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. सो ये फॉर्मूला बेटा याद रखेंगे, ये भूलेंगे नहीं. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर मैं कॉपी करके रखूँगा, ये नोट पॉइंट में यहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है मैं लिख के रखूँगा. शाबाश. या इधर टॉप पे लिखेंगे म्यू नॉट I by 2 pi r square into small r. म्यू नॉट I by 2 pi r square into small r. सो इनसाइड के लिए बेटा क्या होगा? इनसाइड के लिए मैंने प्रूव किया मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आता है? म्यू नॉट I by 2 pi r square into small r. That is magnetic field is inverse directly proportional to r. ठीक. अच्छा, चलिए यहाँ तक तो बात आ गई सबको समझ. इसके बाद अब जब हम देखेंगे, अब मैं सपोज पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज आई नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द सरफेस. सरफेस पे क्या होगा बेटा? जब सरफेस की बात करेंगे, ऑन सरफेस के लिए बेटा क्या होगा? सरफेस के लिए स्मॉल r का वैल्यू किसके बराबर आएगा? कैपिटल R के बराबर. इस सरफेस पे अगर पॉइंट लेंगे, स्मॉल r का वैल्यू होगा रेडियस के बराबर, कैपिटल R के बराबर. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द सरफेस? एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I by 2 pi r square into small r के बदले बेटा कैपिटल R लिखेंगे, ए कटेगा. सो दैट इज म्यू नॉट I by 2 pi r, एंड दिस विल बी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस. एक्सिस पे 0, सरफेस की ओर जाओगे, सरफेस पे मैक्सिमम फील्ड होगा कितना? म्यू नॉट I by 2 pi r. चलिए ये बात भी हमें समझ आई. अब तीसरा पॉइंट जो हमारा बचा, अब बाहर वाले के लिए देखेंगे. बाहर कोई पॉइंट मैं लूँगा, सपोज अब इनसाइड नहीं ढूंढना मैग्नेटिक फील्ड, आई नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, जो कि लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ जब मैंने हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट देखा था. सपोज यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो मैं एम्पियरियन लूप ऐसा ही ड्रॉ करूँगा. Suppose the point is at a distance of r from the axis, and the direction of loop is like this, so theta is equal to 0. So to find the magnetic field at this very point, I am again using Ampere's circuit law. So तीसरा कहाँ पे बेटा? आउटसाइड में देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. आउटसाइड के लिए फिर से मैं यूज करूंगा क्या? Ampere's circuit law. तो I write using ACL, Ampere's circuit law. तो बेटा क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, b dl cos theta, theta तो 0 है, cos 0 is equal to mu naught times. So how much current is enclosed by the loop? All the current is enclosed by the loop. So इस लूप के अंदर सारी की सारी करंट है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा I. So cos 0 बेटा आएगा, cos 0 जो आएगा
cos 0 1 हुआ, b लूप के हर एक पॉइंट पे बेटा सेम होगा, b बाहर आएगा। सो एक ही स्टेप में अब लिखूंगा b बाहर आएगा। इंटीग्रेशन dl किसके बराबर आएगा, dl लूप के एलिमेंट्स होते हैं, सो पूरा होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी इक्वल टू 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। सो b यहाँ से निकालेंगे, b बेटा किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट I by 2 pi r, and this is small r. That means outside magnetic field is inversely proportional to r. Simple. ठीक है, यानी एक्सिस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड 0 आया, एक्सिस से सरफेस की ओर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा। और बाहर जब आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जितना आप बाहर फिर जाएंगे, दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बेटा धीरे 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 कम होता जाएगा। सो ये सीन है, ये सिंपल चीज़ है। तो अगर आप इस चीज़ को ग्राफिकली दिखाना चाहेंगे, सॉलिड सिलेंडर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है, सो सॉलिड सिलेंडर से आप मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल वेरिएशन दिखा सकते हैं। कैसा होगा ग्राफिकल वेरिएशन, शाबाश। सो सिंपल सिंपल। सो दिस इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, जब आर का वैल्यू बेटा 0 होगा, आर का वैल्यू जब 0 होगा यानी आप एक्सिस पे हो, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उसके बाद जब आप सरफेस तक जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा। तो ग्राफिकली मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लीनियरली बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक। सो इसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा मैक्सिमम होगा, यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आया होगा, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा कितना, म्यू नॉट I by 2 pi r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद बेटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिंपल। So this is the graphical variation of magnetic field due to the solid cylinder carrying the current I, ठीक। चलिए नाउ अब हम देखेंगे बेटा, अगर जो ये सॉलिड सिलेंडर है, अगर हम इसके अंदर एक कैविटी बनाएंगे, सिलेंड्रिकल कैविटी बनाएंगे, तो उस कैविटी में क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्या वो कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, ठीक। तो इसके बाद आप टॉपिक लिखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, इज एक्चुअली द क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ ए करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंड्रिकल कैविटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, फिर से मेरे पास एक सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था, लेकिन मैंने बेटा इसमें कैविटी एक बना दी, ठीक है। तो कुछ ऐसे, सपोज दिस इज सॉलिड सिलेंडर एंड इट इज़ कैरिंग सम करंट I, और मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसमें एक सिलेंड्रिकल कैविटी बेटा बना दी, सिलेंड्रिकल कैविटी एक हमने बना दी, ठीक। ये सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी, इतना सारा पोर्शन बेटा हमने बाहर निकाला है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि अब सिलेंड्रिकल कैविटी की भी अपनी कोई एक्सिस होगी, सपोज ये उसकी एक्सिस है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक्सिस से एक्सिस तक की डिस्टेंस जो है बेटा वो मैं स्मॉल r ले रहा हूँ। स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू एक्सिस, ठीक। और इस कैविटी में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक पॉइंट ले लिया है जो कि इस कैविटी की एक्सिस से सपोज एक ही दूरी पे है, ठीक। मतलब मैं कुछ ऐसे समझाऊंगा, अगर मैं इस सिलेंडर का टॉप व्यू देखूंगा तो सर्कुलर दिखेगा, ये हो गया सिलेंडर का टॉप व्यू, सर्कुलर। अगर टॉप से देखेंगे सर्कल दिखेगा, ठीक है, ये एक्सिस हो गई। और ये कैविटी भी बेटा मुझे सर्कुलर ही दिखेगी, ये वाली सर्कुलर कैविटी मैंने बना दी, ठीक। चलिए अच्छी बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ इसका अपना सेंटर होगा कोई, ये इसका सेंटर है यानी इसकी एक्सिस है, एक्सिस से एक्सिस तक की दूरी मैंने बेटा r ले ली, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिलेंडर के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया, मान लीजिए यहाँ पर वो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, और वो पॉइंट इस सिलेंड्रिकल कैविटी में जो है वो पॉइंट इस एक्सिस से सपोज एक ही दूरी पे है, कहीं पर भी ले सकते हैं ना, इधर मैंने मान लीजिए लिया तो एक ही दूरी पे है, सपोज एक ही दूरी पे मैंने वो पॉइंट ले लिया।
और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट एक्चुअल सेंटर से सपोज बी की दूरी पे है। सिंपल सिंपल। तो मुझे इस पॉइंट पे सिलेंड्रिकल कैविटी में जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इस पॉइंट पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा जाए, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये ए मैं ले रहा हूँ, ठीक, ये आर है और ये बी है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस कितनी है आर, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, पहले मैं एज्यूम करूंगा बेटा मैंने कोई चीज़ बाहर नहीं निकाला है, ये सिलेंड्रिकल कैविटी हमने नहीं बनाई है, यानी इसमें से कुछ मटेरियल बाहर नहीं निकाला, ये पूरा का पूरा सिलेंडर है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर मैं ये पॉइंट पे फिर अगर फुल सिलेंडर से मैं निकालूंगा, मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फुल सिलेंडर से बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इससे पहले मैंने पढ़ाया है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, उसकी फॉर्मूला हमने ये बताई थी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। सो ये सॉलिड सिलेंडर में एक पॉइंट है जो कि इनसाइड सिलेंडर के इनसाइड है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बराबर यही मैं लिखूंगा, आई एम राइटिंग म्यू नॉट आई बाई, शाबाश क्या आएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल आर के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है बी, सो आई एम राइटिंग इट इज़ बी, ठीक है बेटा। सो ये फुल सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, अब मैं इससे बस निकालूंगा, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन से निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, फिर वो दो फील्ड्स में सबट्रैक्ट करूँगा, बिकॉज ये वाला पोर्शन तो निकाला है ना हमने। तो अब अगर ये भूल जाइए सारा, सिर्फ ये सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, आपको नहीं लग रहा है ये पॉइंट जो है ये इस सिलेंडर के इनर है, इनसाइड एक पॉइंट है और इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो अब मुझे बताइए ये रिमूव्ड पार्ट जो मुझे रिमूव करना है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता, मैं लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट, और रिमूव्ड पार्ट की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता इस पॉइंट पे, B2 लिखेंगे, कितना होता, फॉर्मूला बराबर यही म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, लेकिन अभी इसका रेडियस मुझे लेना है, इस सिलेंडर का रेडियस, सो मैं आर डैश लिखूंगा, सपोज आर डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है जिसको स्मॉल आर हम कह रहे हैं, वो डिस्टेंस है ए, ठीक है ना। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, बस इन दो फील्ड्स को कैंसिल सबट्रैक्ट करना। पहले मैंने ढूंढा फुल सिलेंडर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, फुल सिलेंडर से क्या होता, वो ये आया। फिर मैंने देखा कि रिमूव्ड पार्ट से कितना होता, वो ये आया। अब मुझे सिर्फ इस पार्ट की वजह से देखना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स आई हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू फील्ड्स। सो जब मैं ये दो फील्ड सबट्रैक्ट करूंगा हमारा आंसर क्या आएगा, व्हाट इज आवर आंसर नाउ। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसके बराबर आएगा, so what is B net, it is equal to magnetic field due to full cylinder, that is mu naught I by 2 pi r square, shabash, into B minus mu naught I by 2 pi r dash square into A। so net magnetic field बेटा किसके बराबर आएगा। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आपको नहीं लगता ये करंट और पाई आर स्क्वायर एरिया बेटा, करंट बाय एरिया, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, सो करंट पर यूनिट एरिया कौन कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूँ म्यू नॉट बाई 2 जे बी, जे इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। चूंकि ये तो सारा सेम स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स यहाँ पर जितनी करंट डेंसिटी होती है इसके अंदर भी उतनी ही करंट डेंसिटी होगी ना, जो हमने निकाला उसके अंदर भी उतनी ही करंट डेंसिटी होगी। सो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, ये आई बाई पाई आर डैश स्क्वायर के बदले भी जे ही आएगा, सो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई पाई आर डैश स्क्वायर, इसके बदले भी जे ही आएगा बिकॉज करंट डेंसिटी हर जगह सेम होगी। और साथ में यहाँ पे क्या है बेटा, साथ में यहाँ पे आया, साथ में यहाँ पे आया म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू ए, ठीक। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसके बराबर आएगा, अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहोगे म्यू नॉट बाई 2 जे, यहाँ पे आएगा बी माइनस से, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसके बराबर आएगा। अगर आप ये वेक्टर नोटेशन लेंगे, ये बी है ये ए है, अगर हम ट्राइंगुलर यूज़ करेंगे आर प्लस ए आएगा ना, बी आर प्लस ए आएगा बी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आर प्लस ए आएगा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल दैट इज बी, ठीक है।
तो आर किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू बी माइनस ए। सो बी माइनस ए के बदले आप आर लिखेंगे तो म्यू नॉट बाई 2 JR। सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे पता चल रहा है कि बेटा कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो होगा म्यू नॉट बाई 2J इंटू आर। लेकिन आर समझने की कोशिश करिए, आर है क्या, आर एक्सिस से एक्सिस तक की डिस्टेंस है। दैट मीन्स इसकी एक्सिस से इसकी एक्सिस तक कितनी डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड उस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो अगर आप इस कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले, हर एक पॉइंट के लिए फॉर्मूला यही आएगी, वहाँ से आर निकल के आएगा। यानी हर एक पॉइंट के लिए मान लीजिए आपने अब यहाँ पे पॉइंट रखा था, इस यहाँ पे पॉइंट रखा था, यहाँ पे आप ये ए रखेंगे, ये बी रखेंगे, तब भी बी माइनस ए आर ही आएगा। यानी कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यही होगा, सेम होगा। सो इनसाइड द कैविटी मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म बट इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसे बताऊंगा, सपोज मैंने दो कैविटीज़ बनाई हैं, दो कैविटीज़ मैंने बनाई हैं, ये एक कैविटी है दूसरी कैविटी। आपको क्या लगता है कि कौन सी कैविटी एक्सिस के नज़दीक है, ये वाली। सो इस कैविटी के लिए एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस जिसको आप आर कहते हैं वो कम होगा, इसके लिए आर होगा ज़्यादा, और जिसके लिए आर ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, इस कैविटी के अंदर भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, लेकिन इस वाली कैविटी में टोटल मैग्नेटिक ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इस कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस। सो दैट मीन जितनी कैविटी आप एक्सिस के नज़दीक बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितनी कैविटी आप एक्सिस से दूर बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो ये नोट पॉइंट करके रखना, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट बाई 2J इंटू आर। ठीक, सो ऐसा सीन देखने को मिला आप लोगों को। तो फाइनली अब ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ये एक्सिस बना रहे हो बेटा, ठीक है, अगर आपने अब ये सपोज मैंने सिलेंडर बना दिया, सॉलिड सिलेंडर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैंने एक एक्सिस बनाई, यहाँ पे कैविटी मैंने बनाई एंड पे, और दूसरी कैविटी मैंने यहाँ पे बेटा बनाई। आप बता सकते हैं इस कैविटी में क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ज़रूर। इस कैविटी के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, हाँ होगा, लेकिन एक फ़र्क होगी, इस वाली कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, इस वाली कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जो कैविटी एक्सिस से दूर होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम दूसरा सेक्शन इसका कंप्लीट कर चुके। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।